Good morning, student. This is Srikant and our class 9 political science chapter 2nd constitutional design continue. Students, previous classes we have discussed about apartheid movement in South Africa, and here we taught about how the black community and the white community and meet together and make a finest constitution of the world. And today we will discuss about why do we need a constitution, हमें संविधान की जरूरत क्यों है. And so first of all we study about what is a constitution. आज ये संविधान है क्या student, and there is a many different definitions of the constitution. Constitution is a fundamental law of a country according to which nations states are governed. Constitution is a supreme law. Constitution is a fundamental law. And constitution is a set of another definition. And any definition you will write. Constitution is a set of written rules. Constitution is a set of written rules that are accepted by all the peoples in the country. And question regarding this paragraph. बेटा इस paragraph से related जो question है very important question is that what is a constitution and why do we need a constitution. संविधान क्या है और हमें संविधान की जरूरत क्यों है. So students, constitution is a set of written rules that are accepted by all the peoples in the country. ये आप लिख सकते हो definition, and you also write a constitution is a fundamental law of a country according to which nations or states and organizations are governed. And our second point, why do we need a constitution, हमें संविधान की जरूरत क्यों है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. And it is the supreme law that determine the relationship among the peoples living in a territory. बेटा जो हमारे टेरिटरी में रहते हैं, हमारे क्षेत्र में रहते हैं, called citizens. The relationship among the people living in a territory called citizens, and also relationship between the peoples and the government, यानी कि relationship between the government and the peoples. And the second point regarding why do we need a constitution, जो दूसरा जो point है बेटा very ये जो 4 points है very important है, ये आपको learn करना है. And you will first write a definition of a constitution, and second you will write the 4 points regarding this topic. And it guarantees a degree of trust. ये बेटा it's generate a degree of trust है, ये लोगों के अंदर विश्वास पैदा करता है. कौन? constitution. Student, first of all, and you know about India is a secular nation, and here different religious peoples live together. क्यों रहते हैं, क्यों फाइटिंग, क्यों झगड़ा नहीं होता है? क्योंकि हमारा जो देश है सेक्युलर नेशन है. कौन कहा, किसने कहा है? कॉन्स्टिट्यूशन. सो स्टूडेंट्स, इट गारंटीज द डिग्री ऑफ ट्रस्ट. ये कीवर्ड है, दिस इज द कीवर्ड, डिग्री ऑफ ट्रस्ट, एंड द कंट्रीब्यूशन that is necessary for different kinds of people live together. बेटा, and the contribution that is necessary for different kinds of people. Different kinds of people, it means the different religious people, different caste peoples. People who live together. मतलब constitution generates degree of trust. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है बेटा? जनरेट डिग्री ऑफ ट्रस्ट, यानी कि लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करता है, जो कि ये विश्वास ट्रस्ट डिग्री क्या बेटा? एंड इन इंडिया द डिफरेंट रिलीजियस पीपुल्स लिव टुगेदर, मतलब लोगों के अंदर जो है बेटा मिलजुल करके रहने का जो है ये विश्वास पैदा करता है. कौन? कॉन्स्टिट्यूशन. Yes, I hope it's clear. And second point, it specifies how the government will constituted and who will have power to take a decision. And constitution specify, our constitution specify how the government will be constituted, यानी कि जो गवर्नमेंट है बेटा वो कैसे कार्य करेगी,
ठीक है, कैसे फंक्शन करेगी, किसने डिक्लेयर की, किसने स्पेसिफाई किया है, कॉन्स्टिट्यूशन। इफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट डिक्लेयर इट दैट एनीवन कैन मेक अ प्राइम मिनिस्टर कैन मेक देयर ओन गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट बेटा बना सकता है। अगर ये चीज नहीं होता तो क्या है, कोई भी गवर्नमेंट बना सकता है। ओके, कोई भी जो है मुकेश अंबानी आल्सो मेक अ गवर्नमेंट। Okay, so students, the constitution specify how the government will constitute and who will have a power to take a decision, यानी कि किसके पास कौन सा जो है बेटा पावर होगा, and who will take which types of a decision। okay, ऐसा नहीं है कि कोई one person prime minister can take all decision and he make also president, finance minister, the finance minister, defense ministers, okay, and governors works done by only one person। it's not okay। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर, यहाँ पर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है किसके पास, वो एंड कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव पावर एंड हु विल टेक डिसीजन। मतलब किसके पास पावर क्या होगा, जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर क्या होगा, किसने स्पेसिफाई किया बेटा, इट स्पेसिफाई बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर होगा, स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नो वन यूज अनलिमिटेड पावर, कोई भी व्यक्ति अनलिमिटेड पावर का यूज नहीं कर सकता है। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट, इट इज द ले डाउन लिमिट्स ऑफ पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस अबाउट द राइट्स ऑफ सिटीजंस। इट ले डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि बेटा ये क्या और भी क्या बताता है कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। लिमिट मतलब यानी कि जो गवर्नमेंट्स है बेटा उसके जो है लिमिट्स के बारे में ये बताता है। ओके, एंड टेल अस अबाउट द राइट्स इट्स ऑफ सिटीजंस। ओके, एंड ये बेटा ये द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ये जो है बेटा गवर्नमेंट के ऊपर बेटा क्या करता है, ये लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर बेटा गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा जी, ये भी बताता है। स्पेसिफाई द हाउ द पावर्स गवर्नमेंट हैव। ओके, एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट यूज अनलिमिटेड पावर्स। ओके, एंड टेल अस अबाउट द राइट ऑफ इट्स सिटीजंस। ओके, यानी कि गवर्नमेंट यानी कि जो सिटीजंस हैं, ओके, the citizens who live in a territory, in a regions, okay, and they have their own fundamental rights, मतलब उनकी भी जो है फंडामेंटल राइट्स है। तो इस तरह से बेटा जो गवर्नमेंट्स है वो अपने अनलिमिटेड पावर का यूज नहीं, दे कैन नॉट इम्पोज एनी थिंग्स ऑन द सिटीजंस। ओके, और यू नो एंड डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, ओके, राइट टू इक्वालिटी, ये सब जो सारी चीजें बेटा ये क्या है बेटा, किसने दिया है, हु गिव अस, किसने हमें दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इट एक्सप्रेस द इंस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट द क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। लास्ट पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इट्स एक्सप्रेस द इंस्पिरेशन, यानी कि ये और भी बेटा क्या करता है, इट आल्सो एक्सप्रेस द पीपल्स अबाउट द क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, और यानी कि जो पीपल्स हैं वो जो है अच्छी जो सोसाइटी और अच्छी जो है नेशन का कैसे जो एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, ये भी वो एक्सप्रेस करता है। ओके, एंड सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस लेक्चर। ओके, आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू।